So we start with the revision of the vectors. So we discuss about the few definitions like a unit vector. Vector is said to be unit vector if a vector divided by its magnitude, it becomes unit vector. Unit vector basically used for direction purpose. It is used for direction only because its magnitude is 1. Its magnitude is 1 having direction, that's why it is known as unit vector. Now unit vector is specified, that means I is the unit vector for x direction, j is the unit vector for y direction, and k is the unit vector for z direction. These are fixed, and these vectors are represented by cap. Like if you want to write down a unit vector, that means vector divided by its magnitude. For example, suppose velocity is given 10 meter per second east to west, and its magnitude will be 10 meter per second. If v divided by v, it will be 1 east to west. That is called unit vector of velocity. When a vector divided by its magnitude, it becomes a unit vector, and these are fixed. These are three: I for x direction, j for y direction, k for z direction. So these are the types of unit vectors. Now we discuss about the equal vectors. Equal vectors. Vectors are said to be equal vectors if they are having same magnitude and same direction. These are the two vectors. They are having same magnitude, okay, and same direction. Arrowhead gives the direction, while arrow length gives the magnitude. ये arrow length हो गई, दोनों की arrow length same हो गई. Arrow head भी दोनों के एक ही direction में है. That's why they are having same direction as well as same magnitude. That's why these are called equal vectors. Negative vectors. Same magnitude but opposite direction. Same magnitude but opposite direction, known as negative vectors. Okay, and next we discuss about the co-initial vector. Vectors are said to be co-initial if they are having same starting point. These two vectors are co-initial because they are having same starting point. So that's why known as co-initial. Co-planar. If the vectors are in a same plane, known as co-planar vectors. Suppose these are the three vectors and they are in same plane, lying in xy plane या yz plane या zx plane. So these are called co-planar vectors. If all the vectors are in same plane, known as co-planar vectors. Now next we discuss about the collinear vectors.
collinear vectors. Vectors are said to be collinear if they are in same line. Like it's a collinear. These are collinear. These are also collinear. So all are the part of collinear vectors. Clear? Now we discuss about the polar vectors. Polar vectors means vectors having some starting point, known as polar vectors. They are having some starting points like force, velocity, displacement, all are the polar vectors because they are having some starting point. दूसरे होते हैं axial vectors. These are also known as rotational vectors. They are having no starting point. They can rotate the body either in clockwise or in anti-clockwise. They are having rotational effect. If they rotate in a circle or in a clockwise or anti-clockwise, and you know in case of the circle there is no starting point. So such type of vectors having no starting point known as axial vectors, and these are torque as well as angular momentum. Torque and angular momentum. Turning effect, turning moment. They can rotate clockwise or anti-clockwise with respect to the axis. That's why these are known as axial vectors. Now we discuss about the vectors in a plane. Vectors in a plane. Vectors in a plane, these are a special type of vectors. They are having some fixed points. Okay, these R1 and R2 known as position vectors. These are position vectors. Why these are called position vectors? Because they gives the position of the object with respect to origin. Vector will be position vector only if it starts from origin. ऐसा नहीं कहीं से स्टार्ट हो जाएगा तो पोजिशन वेक्टर बन जाएगा, नहीं बनेगा. Only if it starts from origin. And it is known as displacement vector. It's a displacement vector. और कोई भी displacement vector नहीं होगा, आपने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया तो displacement vector नहीं होगा. It is final position minus initial position. So it is known as displacement vector. Delta R. So these are known as vectors in a plane. Now discuss about the addition of vectors. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जानो इसको. We can add only like vectors. We can't add or subtract unlike vectors. Force with force, velocity with velocity, displacement with displacement कर सकते हैं आप.
फोर्स विद वेलोसिटी नहीं कर सकते, वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते. Only like vectors can be added. Suppose if two vectors are in same direction, is the A and is B, then resultant will be R equals to A plus B. R equals to A plus B. Second, opposite direction. It will be vector A minus vector B. तो A माइनस B बन जाएगा. ठीक, तो ये A माइनस B हो जाएगा. अब इसमें आप देखें तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा बिगर वेक्टर डिसाइड किया करता है. इसमें A B से बड़ा है, तो रिजल्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो वेक्टर A की तरफ होगी. वेक्टर A की थी लेफ्ट टू राइट, इसलिए रिजल्टेंट भी किधर आया, लेफ्ट टू राइट. डायरेक्शन विल बी डिसाइडेड बाय ओनली बिगर वेक्टर. तो बिगर A है इसलिए A की डायरेक्शन ही काउंट होगी. यहाँ पर हम लोग दो वेक्टर लेके चल रहे हैं, उनमें हम ये मान के चलें कि दो ही एंगल लेके चले फिलहाल, 0 और 180. अगर इनके बीच में कोई एंगल गिवन होगा तो हम लोग फिर कुछ लॉ लगेंगे. जैसे पहला हम लोग लेके चल रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Triangle of vector addition. If the two statements सुनने पहले, स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट, कई बार स्टेटमेंट भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है. इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव इट्स resultant. Okay, if two sides of the triangle are represented by vectors in same order, third side in opposite order give its resultant. और आपको पता है सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल से मिल जाए तो ये कहलाता है सेम ऑर्डर. अगर हेड हेड और टेल टेल मिल जाए तो अपोजिट ऑर्डर. तो ये सेम ऑर्डर हो गया और ये अपोजिट ऑर्डर हो गया. अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिल गया तो क्या हो गया, सेम ऑर्डर. अगर ऐसे मिल गया तो ये हो गया अपोजिट ऑर्डर. हेड हेड टेल टेल मिलेंगे तो अपोजिट ऑर्डर, हेड टेल तो सेम ऑर्डर. ठीक, तो जाना है, ट्रायंगल लॉ बना रहे हैं हम लोग. इसमें दो वेक्टर लेके चल रहे हैं. एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. ये एंगल थीटा बना हुआ है. तो पहले इन दो वेक्टर की हेल्प से हम लोग दो साइड बना रहे हैं. ये थीटा हो गया. थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, गिव इट्स रिजल्टेंट. यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है बीटा. ये रिजल्टेंट ने ए के साथ कितना बनाया है, बीटा. वेक्टर बी ने ए के साथ कितना बनाया हुआ है, थीटा. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, while beta is the angle between resultant and one vector. Okay, now तो अब हमें इसका डेरिवेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ. तो एक ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग, DEF.
इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल दो, डी ई अपॉन, सॉरी, इट इज ई एफ अपॉन डी एफ, ई एफ अपॉन बी, सो ई एफ इक्वल्स टू बी साइन थीटा मिल गया। इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल दो, कॉस थीटा क्या मिलेगा, डी अपॉन बी, और डी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। और अब कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं, सी ई एफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी को हमने सी डी प्लस डी ई लिख दिया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी ए है, डी ई बी कॉस थीटा है, ई एफ बी साइन थीटा। ये बन गया, इसको हम पास पास लिखेंगे तो बी स्क्वायर आएगा केवल, और आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और चूंकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड, इससे तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, और अगर अब हमें डायरेक्शन निकालनी है तो क्या निकालेंगे, बीटा, क्योंकि रिजल्टेंट बीटा एंगल बनाए हुए, तो बीटा जो है वो डायरेक्शन बताएगा। तो ट्रायंगल सी ई एफ में टेन बीटा निकाल दो, टेन बीटा मिलेगा ई एफ अपॉन सी ई, और टेन बीटा इक्वल्स टू ई एफ अपॉन सी डी प्लस डी ई, एंड टेन बीटा ई एफ। आप देखें यहां पर ई एफ निकाल चुके हैं हम लोग, बी साइन थीटा है, ये ए है, ये और ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। और हमें बीटा की वैल्यू लॉग टेबल से देखनी होती है, जो हमने आपको सिखाया था, तो उसकी हेल्प से आप एंगल देख सकते हो। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और है, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वी डिस्कस अबाउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इक्वली इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका भी स्टेटमेंट सुने। इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय
vectors in same order, diagonal in opposite order give its resultant. इस तरह देखें, जैसे ये दो वेक्टर हैं, और इनकी हेल्प से पहले हम लोग बना रहे हैं पैलोग्राम. ठीक, ये पैलोग्राम बन गया. जो वेक्टर ए है वो ये वेक्टर ये बनेगा, जो वेक्टर बी है वो ये बनेगा. रिजल्टेंट ने एंगल बनाया हुआ है बीटा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए. दोबारा सुन लें स्टेटमेंट. इफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैलोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, diagonal in opposite order give its resultant. ये जो diagonal है वो opposite order में इसका रिजल्ट बताएगा. और डेरिवेशन बहुत ईजी है, एज इट इज लाइक एज ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन. उसका रीजन है कि अगर हम लोग ये पार्ट देखें, इतना पार्ट देखो आप, नीचे वाला ये जो वेक्टर बी है वो ये रहा, जो ये है वो ये है. अगर हम इसको छिपा लें तो अभी जो आपने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ वही तो बन गया. वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी रहा, और ये उस टाइम क्या था, थर्ड साइड थी. यहाँ पर क्या बन गया, वो डायगोनल. तो इसका आंसर, इसका डेरिवेशन एज इट इज वही होगा जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का था. मैं कर देता हूँ उसको दोबारा, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा ट्रायंगल लॉ का. देखें इसको. तो अगेन इन राइटिंग इन ट्रायंगल DEF, इन राइटिंग इन ट्रायंगल DEF, cos थीटा देखो क्या मिलेगा, DE अपॉन DF. बी कॉस थीटा मिल गया. इसी में अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो देखो DE मिल गया, EF मिल गया. और अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, दैट इज CEF, कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल. CEF. और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. CF स्क्वायर इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. ओके, नाउ CE को लिख सकते हैं हम लोग CD प्लस DE, और अब वैल्यूज लगा दो. ये R स्क्वायर हो गया, ये A प्लस B कॉस थीटा हो गया, ये B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया. और सॉल्व करो इसको.
सो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड आ गया, बिल्कुल वही आ गया जो ट्रायंगलों में कराया था। और अब डायरेक्शन निकाल देते हैं। tan बीटा इक्वल्स टू EF अपॉन, ये हो गया ना, पूरा लेके चल रहे हैं, CE, और tan बीटा इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा आ गया। क्लियर? कहाँ समझ नहीं आया? नहीं आया? कहाँ से बताना है? ये रिवीजन है भाई साहब, ये रिवीजन है ये रिवीजन बैच चल रहा है, इसमें कम टाइम में ज़्यादा देना है मुझे, क्योंकि रिवीजन बैच में बच्चों को कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, जब आप एज यूजुअल बैच पढ़ोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो इज़ अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग। अभी इसमें आपने देखा कि केवल 2 वेक्टर हम लोग ऐड कर रहे थे। चलो दोबारा देख लो उसको, एक बार फिर दोबारा देख लो। तो हम लोग वेक्टर एडिशन लेके चल रहे हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी डिस्कस किया, और अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने देखा कि डायग्राम ऑलमोस्ट जो है ट्रायंगलों का बन जाता है अगर हम इतना छुपा लें। स्टेटमेंट जान लें इसका, इफ द 2 adjacent sides of the parallelogram represented by 2 vectors in same order, diagonal in opposite order, give its resultant। तो डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा। तो वही हमने किया, एक वेक्टर ये था, वेक्टर बी लगाया, पैरेललोग्राम बना दिया, आगे बढ़ा के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल बन गया। तो फिर इस ट्रायंगल से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाले। उसके बाद कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, और जो वैल्यूज निकालनी थी उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो आपको मिला r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन मिल जाएगी आपको EF अपॉन CE, और इट इज B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। तो अभी हम लोगों ने ये 2 डिस्कस किए, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग। अगर 2 वेक्टर से ज़्यादा दिए हों, मान लो 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 वेक्टर्स हैं, तो ये एक भी लॉ नहीं लगेगा, ना ट्रायंगल लॉ लगेगा और ना ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके लिए एक नया लॉ बनता है, और उसे बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वी डिस्कस अबाउट द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको देखें। तो now we discuss about the polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. If the sides of the polygon are represented by vectors in same order, closing side in opposite order give its resultant. Poly means many, कितने भी हो सकते हैं। तो ये वेक्टर लॉ है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इट इज यूज्ड टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स। If the sides of the polygon are represented by vectors in same order,
closing side in opposite order give its resultant. इस तरह देखें आप, जैसे मान लो ये वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक सी दिया हुआ है, एक डी दिया हुआ है, ऐसे दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन वेक्टर की हेल्प से पॉलीगन बनाया। ठीक, ऐड कर दिया इनको। अब ये साइड बच गई, तो क्या बोलेंगे, क्लोजिंग साइड, और अपोजिट ऑर्डर कर दो, क्या बताएगा, रिजल्ट। द साइड्स ऑफ द पॉलीगन रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर, क्लोजिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव इट्स रिजल्टेंट। ये आर बताएगा। तो चलो पहले जानो कि आर होगा कितना। यहां जो आर आएगा वो ये होगा, ठीक। और कैसे हुआ जान लो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, तो इन दोनों का सम आ गया। ऐसे ही जब इसको ऐड करेंगे आप, अब फिर एक ट्रायंगल हो गया, और ये क्या आ जाएगा, ये बन गया, एक लास्ट ट्रायंगल बन गया, तो ये आ गया। तो इस तरह पॉलीगन लॉ बनता है। पॉलीगन लॉ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, उसी से प्रूव होके आ गया। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। और अब इनकी एप्लीकेशंस लेके चल रहे हैं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। अब ये लेके चलते हैं, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव। तो जानो कैसे आएगा। ये दो वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम लगा दो, ये पैरेललोग्राम बना दिया, क्लियर। और अब एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, कौन सा, सी डी ई। ट्रायंगल लेके चलना है हम लोग, सी डी ई। तो सी ई, आपको पता है कि ट्रायंगल में थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव इट्स रिजल्टेंट। ये आ गया। अब एक और ट्रायंगल लेके चलना है, सी एफ ई। इसमें देखें आप, सी ई मिलेगा सी एफ प्लस ई एफ ना एफ ई, ठीक। सी एफ किसके बराबर है, बी के। एफ ई किसके बराबर है, ए के। और सी किसके बराबर है, आर के। अब दोनों इक्वेशंस को आप देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, इसलिए राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी।
हो गया प्रूफ? ये था कम्यूटेटिव। और अब लेके चल रहे हैं एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। अब ये लेके चलते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? ये प्रूव करना है। कितने वेक्टर्स हैं? देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो 3 वेक्टर को ऐड करेंगे तो कौन सा लॉ लगेगा? पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। आपको पता है कि मोर देन 2 सिर्फ एक ही लॉ यूज होता है, एंड दैट इज पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे हमें पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। देखो कैसे। बना दिया पॉलीगन। मोर देन 2 मीन्स पॉलीगन। अब ये क्या बन जाएगी? रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड है, ये अपोजिट ऑर्डर है। तो यहां तो कोई दिक्कत किसी को। अब इसको अगर हम ट्रायंगल बना दे तो यहां क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर इसको मिला दें तो क्या मिलेगा? और अब एक ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग डी एफ जी। कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं हम लोग? डी ई जी। डी ई जी। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो आर किसके बराबर आएगा? वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। और अब ट्रायंगल लेके चल रहे हैं डी एफ जी। ये मिल गया। तो अब अगर आप देखें फर्स्ट सेकंड में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ये बनेगा। इज इट क्लियर? नाउ तो और अब लेके चल रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, यानी कि पैरेललोग्राम वगैरह की। तो इसमें लेके चल रहे हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन लेके चलते हैं। मतलब कोई भी एंगल बन रहा होगा वो लेके चलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन में वही कॉन्सेप्ट यहां चलेगा, बस एंगल आ जाएगा। मतलब हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज करना ये बताना है। ठीक, तो ये ए ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी वी ए है। और ये वी बी है। नाउ और एक परफेक्ट डायग्राम बना रहे हैं।
वी ए हो गया, वी बी हो गया, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कैलकुलेट करना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है। तो जिसके विद रिस्पेक्ट निकालते हैं उसको रेस्ट में लाते हैं। अगर हमें बी के विद रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी को कैसे लाना पड़ेगा? रेस्ट में। और रेस्ट में लाने का तरीका क्या है? उसको उसी के वेक्टर से इंपोज कर दो, उसके उसी के वेक्टर से इंपोज कर दो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, इसमें इधर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाए, तो क्या करें? इधर लगा दो, न्यूट्रलाइज हो गया। अगर हम बी को रेस्ट में चाहते हैं तो बी को क्या करें? इंपोज कर दो उसके उसी के नेगेटिव वेक्टर से, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। लगा दिया, और अगर आप देखें ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो चुके हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे नहीं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया करते हैं कभी कभी, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए जिस अमाउंट से जिस डायरेक्शन में आपने बी को इंपोज किया है ए को भी करिए उसी अमाउंट से और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने बी को किया है। ओके, रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, जिस अमाउंट से जिस डायरेक्शन में बी को इंपोज किया है ए को भी करिए। तो बी को आपने किधर किया था? इस डायरेक्शन में। कितने अमाउंट से? इस अमाउंट से। इसी डायरेक्शन में इतने अमाउंट से अब किसे इंपोज करेंगे? ए को। चलो चलो भाई, ए को कर दिया, ये तो खत्म हो चुका है, कट कैंसिल हो चुका है। अब इसको भी हमने इधर ही कर दिया, ये आ गया। आपको पता है कि डायगोनल इन अपोजिट ऑर्डर गिव इट्स रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बताएगा। ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये बीटा हो गया। डायग्राम समझ गए? तो अब जरा देखो, आप पैरेललोग्राम के आपने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, एक डायरेक्शन के लिए और एक मैग्नीट्यूड के लिए, और वो फॉर्मूले ये थे: R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो ये था। दूसरा tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये 2 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ठीक। अब इसमें कैसे चेंज करना वो जान लो भाई। आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आर की जगह लिखेंगे हम लोग VAB, रिजल्ट है भाई। ए की जगह क्या लिखेंगे? VA। बी की जगह क्या लिखेंगे? VB। और वहां पर जो थीटा था एक्चुअली वो यहां पर क्या है? 180 माइनस थीटा। वहां पर अगर आप याद करें तो 2 वेक्टर के बीच एंगल थीटा था, यहां 2 वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो थीटा को रिप्लेस करेंगे 180 माइनस थीटा से, और ये वैल्यूज अब इसमें लगा दो आप फर्स्ट सेकेंड इक्वेशंस में। तो इससे आर मिलेगा। आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग अब? VAB, VA स्क्वायर BB स्क्वायर प्लस 2VA VB cos 180 माइनस थीटा। क्लियर? और अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो। VA स्क्वायर BB स्क्वायर, आपको पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा।
ये मिल गया, ठीक। तो ये VAV आ गया। अब क्या निकालना है? डायरेक्शन। tan बीटा पे आ जाओ। VB साइन 180 माइनस थीटा अपॉन VA प्लस VB कॉस 180 माइनस थीटा। और जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? tan बीटा कॉस 2 VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB कॉस थीटा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन के फॉर्मूले हो गई। क्लियर? तो पैरेललोग्राम लोगों के हिसाब से हमने उसको इक्वेट किया है केवल, और इससे हमें ये फॉर्मूले मिल गए। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग रिवर एंड स्यूमर के केसेस। रिवर एंड स्यूमर मतलब रिवर फ्लो के केसेस लेके चल रहे हैं। पानी बह रहा हो, उसके डायरेक्शन में जा रहे हो, या अप स्ट्रीम जा रहे हो, या डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, तो उसकी दो केस पॉसिबल हैं। एक केस है शॉर्टेस्ट पाथ, और एक केस है शॉर्टेस्ट टाइम। तो वो दोनों ही केस लेके चलते हैं हम लोग। रिवर फ्लो के केस लेके चल रहे हैं। पहला है शॉर्टेस्ट पाथ, और दूसरा बनेगा शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहला केस लेके चल रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ का केस। नाउ स्विमर यहां खड़ा है, उसको बी पे जाना है स्ट्रेट, लेकिन रिवर करंट भी है, मतलब पानी बह रहा है, लिक्विड इज इन मोशन, द वेलोसिटी ऑफ सपोज अ रिवर। ठीक। अब अगर उसको बी पे जाना तो क्या करना पड़ेगा कि बी पे पहुंचे? अपस्ट्रीम जाना पड़ेगा, अगेंस्ट द फ्लो। इधर ऐसे जाना पड़ेगा, तब जाके इधर पहुंचेगा, क्योंकि पानी इधर बह रहा है और बी पे जाना है उसको एकदम स्ट्रेट। अगर सीधे जाएगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, इसलिए पानी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तब पहुंच पाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ द स्विमर हो गया। चाहे इसको v1 लिख सकते हो और उसको v2 लिख सकते हो। ये कहलाता है अपस्ट्रीम एंगल। इट इज अपस्ट्रीम एंगल अगेंस्ट द फ्लो एंगल। तो ये अपस्ट्रीम एंगल हो गया। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बताएगी, ये रिवर की चौड़ाई होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो यहां पर अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें तो क्या मिलेगा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा। अपने स्पीड से ऐसे जा रहा था, पानी इधर जा रहा था, तो जो पहुंचेगा तो ना तो अपनी स्पीड से पहुंचेगा, ना पानी की स्पीड से पहुंचेगा, रिजल्टेंट आएगी। और आपको पता है जब आप पानी के अगेंस्ट चलोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो देखो नेट स्पीड कम हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गया यार। अगर पानी के अगेंस्ट आओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और अब टाइम निकालें तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से हम लोग टाइम निकाल पाएंगे। कई बार अपस्ट्रीम एंगल निकलवाते हैं। अपस्ट्रीम एंगल इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। अगर सपोज आपके पास v2 और v1 है और अपस्ट्रीम एंगल निकलवा रहे हैं,
तो कैसे निकालेंगे? cos थीटा v2 अपॉन v1 हो जाएगा। अगर हमें v और vs पता है, v या v1 पता है, तो sin थीटा लगाना पड़ेगा आपको, उससे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई एंगल तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या गिवन और क्या क्या गिवन नहीं है, उससे हम लोग एंगल निकाल पाएंगे। ये केस जो बना वो शॉर्टेस्ट पाथ का केस था। हमें शॉर्टेस्ट टाइम का केस लेके चला, हमें भाई जल्दी पहुंचना है। कहां पहुंचना है इससे मतलब नहीं, उधर पहुंचना और जल्दी पहुंचना है। अब ये एम है। जल्दी पहुंचना है। v1 स्पीड, रिवर करंट भी है, जाएगा बी, पहुंचेगा किधर? इधर पहुंचेगा। ओके, तो अब यहां पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस बार वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का सपोर्ट मिल रहा है आपको। इधर ही पानी जा रहा है, इधर ही आप पहुंच रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। v goes to अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब टाइम तो कम लगेगा ही, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और स्पीड बढ़ गई है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, इसलिए टाइम कम लगेगा। ये केसेस थे रिवर फ्लो के, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। ओके, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो रिवीजन हमने बनाया है ये, और जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट द कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर एंड लेमीज थ्योरम। इस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। Now, if system is in equilibrium, का मतलब F1 plus F2 plus F3 equals to 0. Then the ratio of force to its parallel side remains constant. Ratio of force to its parallel side remains constant. ये फोर्स इसके लिए पैरेलल साइड, ये फोर्स के लिए पैरेलल, ये फोर्स के लिए पैरेलल। ये कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। लेमेज थ्योरम दिखाते हैं आपको। तो लेमेज थ्योरम, अगेन इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if three forces acting on a point or from a point are in equilibrium, if the three forces acting on a point or from a point are in equilibrium, then the ratio of force to sine of angle rest two forces remains constant.
जैसे F1 है, इसके बाद कौन से दो फोर्स बचे, F2 और F3, इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा, तो साइन अल्फा। F2 लेके चल रहे हैं तो F3 और F1 बचे, एंगल कितना है, बीटा, तो साइन बीटा आ गया। और जब F3 लेके चल रहे हैं तो F1 F2 बचे, बीच में एंगल गामा है, तो F3 बाई साइन गामा। ये लेमीज थ्योरम है। चलो इन दोनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, एक न्यूमेरिकल पे दोनों अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। देखें क्वेश्चन, determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kilogram suspended by a string until the string makes an angle 30 degree with the vertical। तो इस तरह है ये क्वेश्चन। ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसने एंगल बना लिया है 30 डिग्री विद वर्टिकल, वेट डाउनवर्ड, टेंशन टूवर्ड द रिजिड सपोर्टर। ये डायग्राम बन गया। और इसमें मास दे रखा है 0.03 किलोग्राम। और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स निकलवाना है, एफ निकलवा रहे हैं। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर से। एफ अपॉन बी सी हो गया, एम जी अपॉन ओ बी हो गया, ये काउंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये, तो ये डिस्टेंस काउंट होगी, इसके ये पैरेलल होगी, इसके लिए ये पैरेलल होगी, टी अपॉन ओ सी। इन दो को लेके चल रहे हैं, एम जी इंटू बी सी अपॉन ओ बी, एम 0.03, जी 9.8, बी सी अपॉन ओ बी, बी सी अपॉन ओ बी 1030 हो गया। ये फोर्स आ जाएगा। ये कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर से सॉल्व किया। अब लेमीज थ्योरम से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये भी 30 होगा। तो एफ अपॉन एफ के बाद ये दो फोर्स बचे, वेट और टेंशन। 180 में से 30 कम कर दो, साइन 180 माइनस 30 डिग्री हो गया। नाउ टेंशन एम जी अपॉन, अब एम जी देखो, ये और ये एफ और टी के बीच में एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। टी अपॉन साइन 90 हो गया इनके बीच का एंगल। ये एफ साइन 30 हो गया, ये cos 30 जाएगा, साइन 120 मीन्स cos 30। सो एफ इक्वल्स टू एम जी साइन 30 अपॉन cos 30 और एम जी टेन 30। और एफ इक्वल्स टू एम पता ही है 0.03, 9.8, 1/√3। सॉल्व हो जाएगा। और अब लेके चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन।
तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का टूटना, ठीक, टू और मोर देन टू डायरेक्शंस नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, और इसमें लेके चलने हम लोग रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। अगर एक वेक्टर दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूटे और अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो सच टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज नोन एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। वेक्टर स्प्लिटिंग इनटू 2 और 3 पार्ट्स, जो रेजोल्यूशन होता है वो कितने भी पार्ट में टूट सकता है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है वो 2 और मैक्सिमम 3 इतने ही टूट सकता है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। वेक्टर स्प्लिट हो और वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। तो पहले के चलने हम लोग रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस। इन 2 डायमेंशंस। एक वेक्टर है ए और ये 2 पार्ट में रिजॉल्व हो रहा है, आई एंड जे, और ये एंगल थीटा है। इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। सपोज ओ बी इज ए एक्स, इसको हमने ए एक्स मान लिया। इट इज ए वाई। अगर हमें वेक्टर बनाना हो ओ बी को तो रेस्पेक्टिव वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली बी सी हो जाएगा जे ए वाई, और यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। ओ बी प्लस बी सी, जे ए वाई, ठीक। तो आई इन वेक्टर ए एक्स प्लस जे इन वेक्टर ए वाई, ये वेक्टर सम आ गया। और इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालना चाहें तो मिलेगा आपको ओ बी अपॉन ओ सी, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी कॉस थीटा। ओ बी ए एक्स है और ओ सी ए है, ऐसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर हमेशा कॉस कंपोनेंट आएगा। सो इट इज ए कॉस थीटा। इसी में अगर हम साइन थीटा निकालें, बी सी अपॉन ओ सी, ओ सी साइन थीटा, और ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर कॉस कंपोनेंट आएगा, वर्टिकली साइन कंपोनेंट आएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो इनकी। और ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक। अब इसकी एप्लीकेशन जान लो।
तो पहली एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, वॉकिंग ऑफ अ मैन। हम लोग चलते कैसे हैं, उसमें वेक्टर का क्या यूज होगा वो डिस्कस करते हैं। जैसे आपने ये फोर्स लगाया, एडी लगाई, उसका रिएक्शन आएगा। ये एंगल थीटा है, आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है तो हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। वेट डाउनवर्ड है, आर कॉस थीटा इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा, जबकि वेट बैलेंस बाय साइन थीटा। वेट बैलेंस हो गया और ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा। अगर प्रॉपर एंगल बनता रहेगा तो आपको चलने में दिक्कत नहीं आएगी। जहां प्रॉपर एंगल नहीं बनता वहीं पर गिर जाते हैं या गिरते गिरते बच जाते हैं। ड्रंकर्ड के साथ आप देखो, एंगल प्रॉपर नहीं बनता है तो गिर जाता है, और एक फौजी जो होता है वो प्रॉपर एंगल के साथ चलता है, कभी नहीं गिरता है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन देखो, लॉन रोलर का केस, और हमें यह शो करना है कि पुल इज इजियर देन द पुश। ये पुश वाला केस लेके चल रहे हैं, वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अब बढ़ाएगा, चाहे एन ले लो चाहे आर ले लो, और ये अपरेंट वेट बताएगा। इस फोर्स ने इसके साथ एंगल थीटा बनाया हुआ है, तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो एन किसके बराबर हो गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, यानी अपरेंट वेट रियल वेट से भी बड़ा हो गया। इट बिकम हैवियर ड्यूरिंग पुश। रियल वेट एम जी है और अपरेंट वेट कितना आ रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। So in case of the push, roller become heavier more than its own weight, अपने वेट से भी भारी हो गया। और अब पुल का केस देखो, अब एफ कॉस थीटा फिर मोशन प्रोवाइड कर, जैसे यहां पे एफ कॉस थीटा मोशन प्रोवाइड कर रहा है। इस बार एफ साइन थीटा ऊपर लगेगा, तो एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी के बराबर आ गया। तो एन किसके बराबर आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब देखो यहां पर तो ऐड हो रहा है और यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पुल के केस में और रोलर बिकम लाइटर, अपने ऑन वेट से भी कम हो गया। रियल वेट एम जी था, उसमें से एफ साइन थीटा कम हो गया, अपने वेट से भी कम हो गया है। इट बिकम लाइटर, दैट्स वाई पुल इज इजियर देन द पुश। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग rectangular resolution in 3 dimensions।
3 dimensions. If a vector is splitting into 3 components and if they are mutually perpendicular to each other, such type of resolution is known as rectangular resolution in 3 dimensions. इस तरह टूट रहा है। कंप्लीट करते हैं डायग्राम। ये वेक्टर ए है, आई हो गया, जे एट इज के। नाउ सपोज ओ सी इक्वल्स टू एच बी इक्वल्स टू ए एक्स, ये ए एक्स है, वेक्टर बना दो। वेक्टर बन गया। ऐसे ही बी ई इक्वल्स टू सी डी ए वाई, वेक्टर बनाना है। जे ए वाई, ऐसे ही ये ए जेड हो गया, ओ एच इक्वल्स टू बी सी ए जेड, वेक्टर बना दो उसको भी। के ए जेड, ठीक। अब यहां पर मोर देन 3 वेक्टर्स हो गए तो वी यूज पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन मिलेगा आपको ओ इक्वल्स टू ओ एस प्लस एच बी प्लस बी ई। ओ ई ए के बराबर है, ओ एच जो है वो के ए जेड के बराबर है, ये आई ए एक्स के बराबर है और ये जे ए वाई के बराबर है। तो यहाँ से ए मिल जाएगा आपको, वेक्टर ए मिलेगा, आई इन वेक्टर ए एक्स जे ए वाई के ए जेड, ये वेक्टर सम मिल गया, ठीक। वेक्टर सम। अब इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो ओ और बी को मिला देते हैं, ठीक है। ये इस तरह बन गया, ये ओ, ये बी और ये ई है, ओ बी ई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये ओ, ये बी, ये एच है, तो ये ओ था, ये बी था और ये एच आ गया, तो ये भी राइट एंगल बन गया, ओ बी एच, ओ बी एच। तो इसमें अगर हम ओ बी निकालें इस ट्रायंगल से, ओ बी स्क्वायर मिलेगा ओ एच स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में लगा दो, तो ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एच स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर।
ओ ई स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, ओ एच स्क्वायर ए जेड स्क्वायर बन गया, ये ए एक्स स्क्वायर बन गया, ये ए वाई स्क्वायर बन गया। सो ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ गया। ये मैग्नीट्यूड आ गया। एक आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हैं। अगर वेक्टर ए ने अल्फा एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, तो ए एक्स मिलेगा ए कॉस अल्फा। अगर ए ने वाई के साथ बीटा बनाया हुआ है, ए वाई मिलेगा ए साइन बीटा, सॉरी इट्स अ कॉस बीटा। और ये एंगल अगर गामा है तो ए जेड इक्वल्स टू ए कॉस गामा। इन सबकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, तो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कॉस टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ये भी ए स्क्वायर के बराबर है, तो मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है। ठीक, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट इन वेक्टर्स। प्रोडक्ट इन वेक्टर्स, so first we discuss about the scalar product. If the product of two vectors become a scalar quantity, if the product of two vectors become a scalar quantity, such type of product known as scalar products. Example, force into डिस्प्लेसमेंट नॉन एज वर्क। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही पावर देखो, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन पावर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। प्रॉपर्टीज जानो, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के इक्वल्स टू 1। कैसे जानो? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और दोनों ही एक्स डायरेक्शन में हो गए, cos 0 भी 1 होता है, इसलिए 1 आ गया। सेकेंड प्रॉपर्टी, आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि आई और जे या जे या के और आई के बीच में एंगल 90 बनना है और cos 90 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, then their dot product is equals to product of their magnitude only. ठीक, next property, if vector A is perpendicular to vector B,
their dot product is equals to 0. Next property, if vector A dot vector B equals to B vector dot A vector, तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी. एक न्यूमेरिकल देखो इसके ऊपर. एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी. वेक्टर ए गिवन है I प्लस 2j माइनस के. वेक्टर बी है माइनस I प्लस j माइनस 2k, और इनके बीच में हमें एंगल निकालना है. तो यहां से देखें आप, cos थीटा मिलेगा a डॉट बी अपॉन ए बी. पहले हमें a डॉट बी निकालना पड़ेगा. आई जे जे के वन होते, बाकी के 0 हो जाते हैं. -1 आ गया, +2 हो गया, +2 हो गया, 3 आ गया. हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है. 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √6 आ गया. सिमिलरली हमें बी का निकालना है. 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √6 आ गया. ये वैल्यू इसमें लगा दो तो a डॉट बी मिला 3, √6 √6, 3/6, 60 डिग्री. इस तरह सॉल्व होगा. नाउ लेके चल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट. If the product of two vectors become a vector quantity, such type of product known as vector product. अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट भी वेक्टर आ जाए, that is known as vector product. फोर्स वेक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसलिए वेक्टर बन गई, और मिलता है टॉर्क, और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता है. एंगुलर मोमेंटम इनटू perpendicular distance. Linear momentum into perpendicular distance known as angular momentum. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं. They can rotate the body with respect to the axis, and that is also known as cross product. The cross product of two vectors is equals to product of their magnitude and sine of angle between them n unit vector. A B sin theta n unit vector. n unit vector ये डायरेक्शन बताता है. ये नॉर्मल टू द प्लेन है. एक्चुअली इज द नॉर्मल टू द प्लेन. प्रॉपर्टीज जानो. I क्रॉस I, J क्रॉस J,
k क्रॉस k इक्वल्स टू 0। उसका रीजन है इन दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है और साइन 0 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना पड़ेगा। तो जानो उसको। अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो के पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये स्क्रू आगे की तरफ चलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे आएगा, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव कहलाएगी। अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, तो के पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के मिलेगा। ये साइक्लिक ऑर्डर होता है। अब जैसे जे यहां आ जाएगा, आई यहां पहुंच गया, के यहां आ गया, तो जे क्रॉस के आई मिलेगा और के क्रॉस जे माइनस आई मिलेगा। अब के यहां आ गया, जे यहां चला गया, आई यहां आ गया, के क्रॉस आई जे मिलेगा, आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे। और इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है। एक आप सर्कल बना लो, आई जे के, एरो के साथ चलोगे तो पॉजिटिव, एरो के अगेंस्ट नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस जे के मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा। और उसके उल्टा लेके चलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ए क्रॉस बी 0 मिलेगा। If vector A is perpendicular to vector B, A क्रॉस B ए बी मिलेगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टीज होगी। एक न्यूमेरिकल इसके साथ भी देखो। एक वेक्टर ए गिवन है, टू आई माइनस 3j माइनस की वेक्टर बी गिवन है -6i प्लस 9j प्लस 3k। और हम ये शो करना है कि ये पैरेलल है। 2i माइनस 3j माइनस k एंड -6i, 2i माइनस 3j माइनस k एंड -6i प्लस 9j प्लस 3k आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और आंसर 0 आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। आई जे के ले लिया, ये 2 हो गया, -6, 3 9 -1 3, आई ले लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 9, ठीक, ये ले लिया। देखो 2 -6
-3 9 -1 and 3 माइनस साइन ये +9 हो गया। जी अपोजिट ऑर्डर में होता है पहले माइनस साइन लगा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब के लेके चलना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हेंस A क्रॉस B 0, तो प्रूव हो गया। इससे ये वेक्टर का रिवीजन हो गया। ठीक।